go to 2 Kings chapter 6 verses 1 to 6. और दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय उसके पहले वचन से 6वें वचन में Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। And the sons of the prophets said to Elisha, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, see now, the place where we dwell with you is too small for us. यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं यह हमारे लिए बहुत छोटा है। Please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there and let us make there a place where we may dwell. इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। So he answered, go. तो उसने कहा अच्छा जाओ। Then one said, please consent to go with your servants. तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। Here we see a man of God, one of my favorites in the Old Testament is Prophet Elisha. यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के एक सेवक को पुराने नियम के पास बान जी का एक बहुत ही पसंदीदा चरित्र वो है यहाँ पे भविष्यवक्ता एलीशा। And he is with his disciples, the prophets. और वो अपने चेलों के संग भविष्यवक्ताओं के संग था And they are building something. और वे कुछ बना रहे थे। Look at somebody and say, they are building something. किसी को देखकर कहे वो कुछ बना रहे थे। कुछ बना रहे हैं, जोर से बोलिए कुछ बना रहे हैं. Now understand what I'm trying to say. और ध्यान से समझिए कहना चाह रहे हैं। Now all this what I'm sharing with you, और देखिए ये सारी बातें जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, this happens when you are growing. और देखिए ये होता है जब आप बढ़ रहे होते हैं। Are you understanding me what I'm saying? This is not for those people who are just sitting and doing nothing. ये उन लोगों के लिए नहीं होता जो सिर्फ बैठते और कुछ करते नहीं है। You know, they are just saying, अरे चलेगा, rapture होने वाला है, चलेगा. नहीं. No. These are the people who are saying, I want to grow in my field. I want to grow in my anointing. I want to grow in whatever God has called me for. How many such people और over ये वे here? लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अपने पेशे में बढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस बुलाहट में मैं बढ़ना चाहता हूँ। This word is for such people, for me also. ये वचन उन ऐसे लोगों के लिए है। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता Verse है, 4. And चौथा so वचन। he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. तो वो उनके साथ चला और वे जब यरदन के पार पहुंचे, तीर पे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। Verse 5. But as one was cutting down a tree, the iron axe fell into the water. और देखिए वचन में लिखा, परंतु जब एक जन बल्ली यानी पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। And he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. सो वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी गई थी। Verse 6. So the man of God said, Where did it fall? तो परमेश्वर के जन ने पूछा, वह कहाँ गिरी? बाजू वाले को बोलो, तू कहाँ गिरा? Where did you fall? तू कहाँ गिरा? Elisha is asking that Elia- man, where did it fall? एलीशा यहाँ पूछ रहा है उस व्यक्ति से कि तू कहाँ गिरा? And he showed him the place. और उसने वो जगह दिखा दी। Says, Lord, कहा sir, प्रभु? prophet, this is the place where I fell. उसने कहा श्रीमान जी, भविष्यवक्ता जी, यहीं पर जो मैं गिरा। So he cut a stick, threw it in the water, and the iron floated. तब उसने एक छड़ी को काटकर वहां डाल दी और वो लोहा जो था पानी पर तैरने लगा। What I'm about to share with you, जो आपके साथ साझा करने जा रहे the हैं। second point, दूसरा मुद्दा, please today go मेहरबानी करके आज जाइएगा and for the next 7 days, और अगले 7 दिन meditate on this word. इस वचन पर मनन करना And you will come to me after a week, और सप्ताह भर बाद आप आएंगे and I promise you, you will testify. और वादा करते हैं आप गवाही देंगे। You will testify. आप गवाही देंगे। Last Thursday, you know, there was a beautiful baby boy. Anybody saw that? और देख गुरुवार को एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा, Yeah, you know, baby boy. When I was praying for the baby, he's laughing at me. तो पास में उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते वो हंसने लगा। The Lord prophesied over him और प्रभु ने भविष्यवाणी की थी उस पर that he would be born. कि उसका जन्म होगा। Hello, are you there right now? और साथ में हैं इस I वक्त। prophesied today. आज भविष्यवाणी करते हैं 1 week as you put this word into practice, और एक हफ्ते तक जब इस वचन को आप काम पे लगाएंगे you will testify. आप गवाही देंगे। You will testify. आप जरूर गवाही Look at देंगे। your neighbor and say, no room for negotiation. अपने पड़ोसी को देखकर कहें कोई भी ऐसी बातचीत के लिए जगह नहीं है। कोई भी बात नहीं है. Yes, the first one. पहला है, Yes, write it down. The iron axe fell into the water. लोहा देखिए देखते हैं कुल्हाड़ी का वो लोहा जो है पानी में गिरा। Look at somebody and say, the iron axe fell into the water. Now listen, write it सुनिए। down. You see, the iron represents the anointing. आप देखते हैं लोहा जो है अभिषेक का प्रतीक है। The iron represents the anointing because scripture says iron sharpens. और लोहा अभिषेक का प्रतीक है क्योंकि देखिए वचन ऐसा कहता है कि लोहा जो है धारदार बनाता है। How many are understanding right now? कितने समझ रहे The हैं? iron represents the anointing and the handle of the wood, it represents man. और देखिए लोहा जो है यहाँ पर हम देखते हैं वो अभिषेक का प्रतीक है और उसके जो लाठी जो हम देखते हैं लकड़ी जो है वो इंसान का प्रतीक है। Wood always represents humanity. और देखिए लकड़ी हमेशा मानवता को प्रतीक मानी जाती है। In the if you go to the Old Testament, अगर आप जाएंगे पुराने नियम में
You know, the Ark of the Covenant, वहां पर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक it was made of wood लकड़ी से बनाया गया था and it was covered with gold. और उसे ढका गया था सोने से। Do you know what it represents? आप जानते हैं कि किस बात का प्रतीक है? It represents Jesus. यीशु का ये प्रतीक है, Because you see, wood speaks of his humanity and the gold speaks of his divinity. और देखिए लकड़ी जो है उसकी मानवता के बारे में बताती है और सोना जो है उसकी दैवीयता के बारे में बताता है। That speaks of Jesus. यही तो यीशु के बारे में बताता So है। whenever you see wood in the Bible, it speaks about humanity. तो जब कभी बाइबल में आप लकड़ी को देखते हैं तो ये मानवता के बारे में बताता है, The iron and the wood. लोहा और लकड़ी। You see, iron is the anointing, wood is the humanity. God needs man. I know it may sound crazy, and man definitely needs God. और देखिए हम देखते हैं कि अभिषेक और मानवता, देखिए इंसान को अभिषेक की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर को भी इंसान की जरूरत है। God needed to come on this earth. परमेश्वर को इस धरती पर आना था, He used a woman. तब उसने एक स्त्री का इस्तेमाल किया। How many of you following each कि other? तो समझ है कलीसिया? God wanted to send the message out. He used a man called Paul. परमेश्वर को संदेश बाहर पहुंचाना था, तब उसने पौलुस नामक व्यक्ति का इस्तेमाल किया। God wants to reach Mumbai. परमेश्वर मुंबई शहर तक पहुंचना चाहता, He will use you. तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। God wants to touch America. God wants to touch Canada. He will use you. परमेश्वर अमेरिका कनाडा को छूना चाहता है तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। No, I mean it. पूरे दिल से कह रहे हैं। So this, write it down. The first thing is a divine partnership. तो देखिए पहली चीज जो है लिख लीजिए, यह है दैवीय साझेदारी। You see, there is a divine partnership. आप देखते हैं दैवीय साझेदारी है। That's why Paul wrote, he says, God is a co-worker along with us. और इसलिए देखिए प्रेरित पौलुस ने ऐसा लिखा कि हम या परमेश्वर हमारे साथ संगी सहकर्मी हैं। Look at somebody and say, God goes to work with me. किसी को देखकर कहे परमेश्वर मेरे साथ होकर काम करने जाता है। Now religious people, जो लोग धर्मी लोग हैं ना, बोले ऐसा कैसा बोला उसने, क्योंकि तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम चंदा मामा पढ़ते हो। God always works with man and man works with God. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर हमेशा इंसानों के साथ होकर काम करता है और इंसान परमेश्वर के साथ होकर। This is a beauty of God. यही तो परमेश्वर की खूबसूरती है। But please understand this. मेहरबानी करके समझें। Now let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते हैं। The iron axe fell into the water. हम देखते हैं वो लोहे की कुल्हाड़ी जो है पानी में गिरी। You see, आप देखते हैं you can swing the axe, और देखिए आप कुल्हाड़ी को ऐसा चला सकते हैं, but it is the iron that cuts. लेकिन ये लोहा ही जो काटता है। How many of you listening right now? कि तो समझ रहे हैं। You see, as you are going through life, और देखिए जैसे आप जिंदगी में आगे जाते हैं the sharpness of the anointing will become blunt. और देखिए उस अभिषेक की धार जो है कम घटती जाती है। How many are understanding right कि now? तो समझ रहे हैं। As you go through life, जिस जिंदगी में आप आगे जाते हैं, please listen. सुनिए ध्यान No से। matter how anointed you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने ज्यादा अभिषेकित हैं। your axe will become blunt. और देखिए वो धार जो है उसमें ढीलापन आ जाता है, जंग लगने लगती है। That is why इसलिए this axe, it was blunt. It hit, it flew, and that's why the axe was in the water. और इसी वजह से देखिए उस धार उसमें कम हो गई थी, इसलिए जब वो चलाया तो निकल कर वो पानी में जा पड़ा। Many people over here, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ, today it's not that you don't have the anointing. ऐसा नहीं कि आपके पास अभिषेक नहीं है, Your axe has become blunt. लेकिन आपका वो कुल्हाड़ी का धार कम हो गया है। That's why इसलिए God says to you today, परमेश्वर आज आपसे कहता है there needs to be a sharpening of the anointing. अभिषेक की धार होनी जरूरी है। There needs to be a sharpening of that iron. उस लोहे में धार लगाया जाना जरूरी है। How many of you following me? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त। That's why I keep this prayer chain in the morning. और इसी वजह से इस प्रेयर चैन को सुबह में रखते हैं 2.5 hours, 3 hours praying. और 2.5 घंटे 3 घंटे प्रार्थना में लगे रहना। Tell your neighbor, your axe is becoming sharper. अपने पड़ोसी को बोलिए आपकी कुल्हाड़ी जो है धारदार हो रही Tell है। somebody else, your axe is becoming sharper. किसी को बोलिए दूसरे व्यक्ति को आपकी कुल्हाड़ी धारदार हो रही है। The second one, दूसरा है look what it says. Where did it happen? Look at somebody and say, where did it happen? किसी को देखकर कहां पर ये हुआ? It happened while he was cutting a tree. ये तब हुआ जब वो पेड़ को काट रहा था। You can get busy with work. आप कामों में व्यस्त हो सकते हैं, You can get busy with ministry. आप सेवकाई के कामों में व्यस्त हो सकते You हैं, can get busy serving God. प्रभु की सेवा करने में आप व्यस्त हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रभु के सेवक लोगों के लिए है। जो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठे हुए हैं, घर पे सोए हुए हैं, उनके लिए नहीं है। आपको यहां पर आने के लिए बहुत तकलीफ हुई। आपको सुबह किसी को 5 बजे उठना पड़ा। मुझे पता है, मुझे सब पता है। कोई लोग 1 बजे सो के भी 5 बजे उठे हैं। देखो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता है, मुझे पता है। ये अभिषेक, आई एम टेलिंग यू, प्लीज लिसन टू मी, और आपसे मेनी कह रहे सर्वेंट्स ऑफ गॉड, प्रभु के बहुत सारे सेवक लोग,
They've come to me and confessed. वे आकर कबूल करते हैं। He says, Pastor Michael, वे कहते हैं पास्टर माइकल जी, anointing is moving. अभिषेक तो मंडरा रहा है, People are coming. लोग भी आ रहे हैं, Inside I'm dry. लेकिन अंदर ही मैं सूखापन महसूस करता हूँ। मैं सच बोल रहा हूं तुमको। और पब्लिक क्या लगता है मालूम को? ओह वाओ, वाओ, इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेहरबानी समझे, अभिषेक प्रभु का है तो वो कार्य करेगा ही करेगा। लेकिन द अनॉइंटिंग, लेकिन अभिषेक, योर रिलेशनशिप विद गॉड, प्रभु के साथ आपका संबंध, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पर निर्भर करता टेल योर है। नेबर, शार्पन योर एक्स। अपने पड़ोसी को बोलिए कि अपने कुल्हाड़ी को धार लगा लो। Many people, even worship leaders, I'm telling all of you all, देखिए जो आराधना के वे लोग भी, are you listening? You know, you're seeing the music, people, देखिए आप गाते हैं, संगीत बज रहा है, लोग एकदम जश्न मनाते हैं, but inside you're dry. लेकिन अंदर से आप सूख चुके हैं। Volunteers, जो वॉलंटियर है, तुम लोग सबको खाना खिलाते हो, लेकिन तुम अंदर से भूखे हो। Be careful. सावधान रहना। The axe flew out. हम देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी निकल के गिर जाएगी। There was a disconnection. The handle was there, axe flew out. और देखिए वहां पर एक अलगाव हो गया, हैंडल तो हाथ में था लेकिन कुल्हाड़ी निकल के गिर गई। This is where many people, they lose the anointing. यहीं पर बहुत सारे लोग अपना अभिषेक गंवा बैठते हैं। How many understanding right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? Please listen. Today, this is a serious message. आज बहुत ही गंभीर संदेश है, सुनिए। Don't be so busy that you don't get time to sharpen your axe. इतने ज्यादा व्यस्त या कहें इतने ज्यादा बिजी या व्यस्त मत हो जाएं कि आप एक कुल्हाड़ी के लिए धार लगाने का आपके पास समय ना हो। What I'm sharing with you, even my staff members, जो आपसे बांटा जा रहा है इस वक्त, don't get so busy इतने ज्यादा व्यस्त मत हो जाएं serving God परमेश्वर की सेवा करने में that the handle gets separated and the anointing gets separated. कि हैंडल और अभिषेक के कितने लोग बीच में सुन एक रहे हैं? अलगाव हो जाता है। Tell your neighbor, ये एक prophetic word है तेरे लिए और मेरे लिए भी। इतना देर काउंसलिंग, बोल बेटा बोल, तेरे दुख को बोल, तेरे साथ बोल, तेरे सब कुछ बोल। अभी उसने तेरी उसकी उल्टी तेरे पे डाल दी। कितने लोग सुन रहे हैं? इसका काउंसलिंग किया, उसका काउंसलिंग किया, अभी तेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना के लिए। इतना विजिट किया, इतना किया, सबका धोया, सबको पकाया, तू भूखा रह गया। I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं, तुम मेरे लोग हो इसलिए मैं बोल रहा हूं आज। But I want to tell you as a father in the Lord. लेकिन प्रभु में एक पिता के रूप में आपसे कहना कोई चाहते हैं। लोग, you know, बहुत सारे लीडर्स लोग चमक दमक के पीछे भागते हैं। But I want to tell you, this for a ministry to scale is nothing big. There are different levels and models of ministry. और सेवकाई करने के जो नमूने होते हैं उसके अलग अलग स्तर हैं। One model is mega church, where one person does everything. एक नमूना होता है मेगा कलीसिया जहां पर एक ही व्यक्ति सब कुछ करते हैं। Hello. Example is Joel Osteen. उदाहरण के रूप में जोएल ऑस्टिन जी, Just one man, everybody does it's a big thing, everything, whoa, it's good. And there is another model दूसरा where you नमूना break up the church जहां पर कलीसिया को अलग अलग करते in हैं, different places. अलग अलग जगहों पर। Very difficult. बहुत मुश्किल, Because now that same quality has to be in everywhere. क्योंकि अब वही उत्तमता गुणवत्ता You हर एक didn't में होनी understand. चाहिए। You didn't understand. You didn't understand. You didn't understand. Different ways to do ministry. सेवकाई करने के अलग अलग तरीके हैं, But in the other way, लेकिन दूसरा तरीका, many leaders are raised up. बहुत सारे अगुवे लोग जो हैं खड़े होते हैं। I pray that God would raise you up. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको खड़ा करे। तो सुनिए इस वक्त, as you go through life, जैसे आप जिंदगी में आगे जाते हैं, as you go through life, जैसे जिंदगी में आगे जाते your हैं, axe will be blunt और आपकी कुल्हाड़ी जो है वो उसकी धार कम होती है, because you're using it. क्योंकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। You are using it. आप उसका इस्तेमाल कर You रहे are using हैं, it. उसकी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, And that's the place और वही जगह where you can lose it also. आप गवा भी सकते हैं। Look at somebody and say, किसी और देखकर कहे, जहां तू इस्तेमाल करता है वहीं पर तू उसे खो भी सकता है। Write it down. Activity does not indicate fruitfulness. और देखिए गतिविधि काम करते रहना, इसका मतलब यह फलवंत होना नहीं है। Activity does not indicate fruitfulness. और देखिए काम पे लगे रहना या गतिविधि में लगे रहना यह फलवंत की निशानी नहीं है। Write it down. 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves. Say it everyone. Examine and test and evaluate your own selves to see whether you are holding to your faith and showing the proper fruits of it. Test whom? Your team members? No. Test and prove yourselves, not Christ. Do you not know, realize and know
thoroughly by an ever increasing experience that Jesus Christ is in you. Look at somebody and say, test and evaluate. किसी को देखकर कहें, No. Say it again. Test and evaluate. जांच लो और आकलन कर लो. Every company हर एक कंपनी, has a testing. उनके पास टेस्टिंग करने की प्रक्रिया How होती many of है. you know what I'm saying? Every company evaluates their members, evaluates their reports. What are you doing? हर एक कंपनी जो है अपने सदस्यों, अपने जो भी रिपोर्ट है उनका आकलन करते हैं, लेकिन आप कौन सा आकलन करते हैं? When was the last time you tested yourself? पिछली बार कब हुआ था आपने अपने आप को जांचा था? When was the last time you evaluated yourself? और पिछली बार कब हुआ था जब आपने अपना ही आकलन किया था? The first homework. पहला होमवर्क, Go home today आज घर जाइएगा and evaluate yourself. और अपने आप को जांच परखिए, आकलन शांत करिएगा. बैठो और फेसबुक पे मत डालो मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं. शाने चुप बैठ. हम सब कुछ थूकते इधर उधर ना, सब कुछ हम लोग आई एम टेलिंग यू एवरी नॉनसेंस ऑफ आवर लाइव्स वी पुट ऑन फेसबुक. आई एम सॉरी टू से दिस. हमारी जिंदगी हर एक बेवकूफियों को हम देखिए फेसबुक पे डाल. डोंट पुट एवरीथिंग ऑन फेसबुक. सब कुछ फेसबुक पे मत डालें. योर पर्सनल लाइफ, एवरीवन से पर्सनल लाइफ. आपकी निजी जिंदगी, घर की बातें ना सब कुछ फेसबुक पे मत डालो. सब कुछ फेसबुक पे नहीं होता है, अपने लिए होता है. सब जन बोलो जांचने होता है. सब जन बोलो जांचो. Somebody send me that post. We want to show off. देखिए हम दिखावा करना चाहते हैं. So evaluate yourself. Say it everyone, evaluate yourself. तो अपने आप को जांच लो, आकलन करो. What is the method? Write it down. First thing, पहली चीज लिख लीजिए, how is your prayer life? आपका प्रातः जीवन कैसा है. Second, दूसरा, how is your word life? आपके वचन का क्षेत्र कैसा है. Thirdly, तीसरा, do you worship God? क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हैं. मैंने पूछा worship. सब जो बोले worship. मैंने नहीं पूछा प्रार्थना करते हो कि नहीं. मैंने क्या बोला? Worship. Do you worship God? क्या परमेश्वर की आराधना करते प्रार्थना हैं. चिड़िया भी करती है. Do you worship God? क्या परमेश्वर की आराधना करते हैं. Everybody prays. हर कोई प्रार्थना करते हैं. Crows pray. कौवे प्रार्थना करते हैं, Dogs pray. कुत्ते प्रार्थना करते हैं. Wow. Give me my daily bread. Chip. Give me food. Do you worship? लेकिन क्या आप आराधना करते हैं. Do you have family prayer? क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है. Are you having good relationships at home? क्या घर में आपका अच्छा रिश्ता है एक दूसरे के साथ. दुनिया से अच्छा घर में बैरी. 5 key methods one man of God wrote to check. प्रार्थना सब लोग करते हैं, लेकिन जो आदमी सच्चा बिलीवर रहता है वो वर्शिप करता है. वो सुबह उठ के प्रभु की आराधना करता है, बोलता है प्रभु तूने ये दिन दिया इसलिए मैं तेरी आराधना करता हूँ. मेरी बहुत सारी जरूरतें हैं प्रभु, लेकिन तू खुदा है. मेरी बहुत सारी तकलीफें हैं प्रभु, लेकिन तू खुदा है, इसलिए मैं तेरी वर्शिप करूंगा प्रभु. कितने लोग सुन रहे हैं. मेरे पास कॉम नहीं है, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, टोकरी नहीं है, बच्चा नहीं, ये नहीं वो नहीं है, लेकिन मैं तेरी वर्शिप करूंगा क्योंकि तू खुदा है. अगर आप वर्शिप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ ट्रू बिलीवर, यू आर अ फेक बिलीवर. अगर आप आराधना नहीं कर सकते तो आप एक सच्चे विश्वासी नहीं है, आप ढोंगी विश्वासी हैं. सॉरी सर, आप पैसे नहीं दोगे चलेगा, लेकिन मुझे सच बोलने दो. कितने लोग सुन रहे हैं. So please listen. 5 things, write it down. 5 चीजें लिख लीजिए. First one, your prayer life. पहला है आपका प्रार्थना जीवन. Is your prayer life growing? क्या आपका प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है. Can I teach you something? क्या आप कुछ सिखा सकते हैं. I maintain an audit of my prayer life. अपने प्रार्थना जीवन का पासवान जी एक ऑडिट करके बना के रखते हैं. उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, because this is reserved for a retreat. I keep an audit of my prayer life. अपने प्रार्थना जीवन का पूरा रूपरेखा रखते हैं. I keep an audit of my Bible reading. अपने बाइबल अध्ययन का भी ऑडिट रखते हैं. 2 things I told you. 2 चीज आपको बताएं. So I know last year where I was तो इन्हें I पता taught चलता है कि पिछले साल and today where I am. और आज मैं कहाँ हूँ. बाजू वाले को बोल, पैसे का ऑडिट रखता है ना तू? रखता है कि नहीं? लास्ट ईयर 20 लाख आए थे, इस साल 30 आने चाहिए. एंड somebody say I receive. वर्ड लाइफ. वचन का क्षेत्र. पिछले 5 महीनों में 6 महीने 9 महीनों में तुमने कितना बाइबल पढ़ा? कौन सी किताब है? ऐसा नहीं यीशु मसीह की जय, ऐसा नहीं खोलना है, ऐसा नहीं खोलना है. सिस्टमैटिक. सब बोले सिस्टमैटिक. व्यवस्थित तौर पे. हैव यू फिनिश द बाइबल इन योर लाइफ टाइम एटलीस्ट वंस? क्या आपने पूरे जीवन काल में आपने बाइबल एक बार तो भी पढ़ के पूरा किया है? हेलो. नहीं. कोई लोग जब कवर में जाते हैं ना तो बाइबल डालते हैं. एक औरत थी, तो उसके पिताजी मर गए,
तो जब वहां पर मैं था तो बोलता है, देखो ब्रदर, मेरे डैडी को बाइबल मिला था जब वो बचपन में थे, वैसे का वैसा ये नया है। मैं अंदर से सोचा, पढ़ाई नहीं तो नया ही रहेगा ना। तो बोलता यही बाइबल मैं उनको अभी उनके पेटी में डाल रही हूँ, स्वर्ग में उनको याद पड़ेगा ना। मैं बोला स्वर्ग में बाइबल की जरूरत नहीं, वो जीवित बाइबल वहां पर है। लुक एट समबडी एंड से, प्लीज रीड योर बाइबल। मेहरबानी करके अपना बाइबल पढ़ें। इसीलिए बाइबल कंपनी लॉस में जा रही है, बाइबल पढ़ते ही नहीं लोग। वर्शिप, फैमिली प्रेयर, सब जन बोलो फैमिली प्रेयर। सब लोग पारिवारिक प्रार्थना। नाउ एवरीबॉडी मे नॉट प्रे इन योर फैमिली। आपके एक परिवार में देखिए हर कोई भले प्रार्थना नहीं करेंगे, टेक समबडी एंड प्रे। लेकिन किसी को तो साथ लेके प्रार्थना करें। गुड रिलेशनशिप एट होम, घर में अच्छा संबंध। नो प्रॉब्लम इफ दे आर नॉट टॉकिंग, फर्क नहीं पड़ता अगर एक दूसरे से बातचीत you be showing the fruit of love. Somebody say लेकिन praise the Lord. आप अपना प्रेम का फल दिखाएं। When you how do you test yourself? This is the way you test yourself. कैसे आप अपने आप को परखते हैं, ये वो तरीका है आपको परखने का। You can do many miracles outside, देखिए बाहर बहुत सारे आश्रम कर सकते हैं, but the biggest miracle must happen here. लेकिन सबसे बड़ा आश्रम यहाँ होना चाहिए। Tell your neighbor and say, I'm learning now. आपने पड़ोसी को देख कर कहे मैं सीख रहा हूँ अभी। अगर तुम कोई बड़े प्रार्थना नहीं कर रहे तो छोटे बच्चों को लेके प्रार्थना करो। तो ये टेस्टिंग कैसे होता है? ये 5 रीति से ये टेस्टिंग होता है। कितने लोग नए कुछ सीख रहे हैं? 5 रीति से ये टेस्टिंग। ये अगर टेस्टिंग नहीं है, अगर तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेयर नहीं कर सकते हो तो तुम सच्चे बिलीवर नहीं हो। You have to pray with your wife. आपको अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना Look करनी है। at somebody and say 3 minutes, किसी को देखकर कहे 5 minutes, 5 मिनट। 5 मिनट की प्रार्थना नहीं हो सकती फैमिली? 5 areas. Everyone say 5 areas. 5 क्षेत्र। So this is how you test yourself. इस तरह से आप अपने आप को जांचते हैं। Let's go further. Is this blessing you, church? So I have taught you. That's why I told you. If you do it for a week, you will come back with your testimony. इसलिए आपको पता है कि अगर हफ्ते भर तक आप ये करेंगे तो आप अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे। Write it down. He cried out and said. उसने पुकारा और कहा। He went to Elisha and he cried out and said, I have lost it. वो एलीशा के पास गया और पुकार कर कहने लगा कि मैंने गंवा दिया। The first thing, पहली चीज, if your life is not right today, अगर आज आपकी जिंदगी सही नहीं है, you need to go in the presence of God and acknowledge that you have lost that grace, lost your prayer life, lost your word life, lost that anointing. You're living in sin. You need to go before God. Everyone say, he cried out. और सभी लोग कहे उसने पुकारा। सब जन बोले उसने छुपाया नहीं। बोले छोड़ना यार, एक कुल्हाड़ी से क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे हजारों लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं सब छुपा दूंगा। नो नो, he cried out. नहीं, उसने पुकारा। He said, Elisha, उसने कहा एलीशा, I've lost it. मैं गवा दिया हूँ। I've lost it. मैंने गवा दिया है। Do you think that in the whole camp there was only one axe? आपको क्या लगता है पूरे उस छावनी में सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी? No sir. नहीं जनाब। They were building a camp. और वो बड़ी छावनी बना रहे They थे must have had so many axes. और कई सारी कुल्हाड़ी रहे होंगे वहां। But this man was bold enough to come before the prophet and said, Prophet, I lost it. लेकिन इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि भविष्यवक्ता के सामने आ सका और आकर कहना, भविष्यवक्ता जी मैंने उसे गवा दिया है। Write it down. 3 areas. लिख लीजिए 3 क्षेत्र। 3 areas. 3 क्षेत्र। First one, personal conviction. व्यक्तिगत तौर पे कायल होना। Second दूसरा is prophetic rebuke. भविष्यवक्ताई डांट फटकार। And the third one, और तीसरा है discipline or chastening. और देखिए यह है अनुशासन या ताड़ना। First one, पहला personal conviction. व्यक्तिगत तौर पे कायल होना। Second, दूसरा prophetic word or prophetic rebuke. भविष्यवक्ताई वचन या भविष्यवक्ताई तौर पे डांट And the फटकार। third और तीसरा is discipline or chastening, punishment. और देखिए यह होता है अनुशासन या फिर ताड़ना लगाना। Listen, सुने, first one. Now this person, और देखिए when he पहला। knew that he had lost it, ये व्यक्ति जब इसे पता चल गया कि इसने गवा दिया है so he went to Elisha तो वो एलीशा के पास गया and said, अरे बाबा मेरा निकल गया रे, please. So that is the area of personal conviction. Everyone say personal तो conviction. ये था वो क्षेत्र व्यक्तिगत तौर पे कायल होने का, Where you go to God जहां आप परमेश्वर के पास जाते हैं and say, Lord, और कहते हैं प्रभु गलती हो गई यार, मुझसे गलती हो गई, घर में बहुत मारामारी किया मैंने, बीवी बच्चों को एकदम मस्त दिया, सॉरी लॉर्ड। प्रभु बोलता है ठीक है चल खत्म, बीवी को सॉरी बोल, बच्चों को सॉरी बोल, लेके जा, चल फिनिक्स मॉल में लेके जा, खत्म। लुक एट किसी को देखे, look at somebody and say personal conviction. चल नवरेला सॉरी बोल, चल मिटून टाक, चल खत्म, खेल खत्म। Personal conviction. व्यक्तिगत कायल। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ? Now the second दूसरा is prophetic word. वो भविष्यवक्ताई वचन। Now God convicts you. अब देखिए परमेश्वर आपको कायल करता है। सॉरी बोल, no,
मैं नहीं छोड़ेगा उसको, मैं दिखाएगा उसको। कुछ दिखाएगा नहीं, बेचारा 22 साल से तेरे को देख रहा है, तू उसको देख रहा है। देन वन प्रॉफिट कम्स, फिर एक भविष्यवक्ता आते हैं। सर यू लास्ट नाइट यू फॉट विथ योर हस्बैंड, पिछली रात तुमने अपने पति से लड़ाई की है, यू ब्रोक योर मोबाइल, तुमने अपना मोबाइल तोड़ दिया, you threw the bail and बेलन उठा के तुमने फेंके। come on, hello, prophetic word. One sister will come to you, sister I had a dream, एक बहन आकर कहने लगी, बहन मैंने एक तुम्हारे सपना घर का देखा। छपरा टूटा हुआ है। अभी उसको नहीं समझ रहा है, लेकिन तेरे को समझेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? सिस्टर आई केम टू नो यू लॉस्ट योर रिंग। रिंग? माय रिंग इज देयर। आई डोंट नो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Now be careful of those fake prophets who get dreams after eating masala dosa. Not those dreams, real prophets. Are you following me what I'm saying? अब समझ रहे हैं इस वक्त? Yes, because everybody gets a dream. हर एक को सपना आते हैं। So this is, now after that also, you don't listen. उसके बाद भी देखिए आप सुनते नहीं। David messed around with Bathsheba. She was taking a bath and she met Bathsheba. So Nathan came. तो नाथान नबी आता है, बोला you, अगर कहते तुम, तूने गलत किया है। अभी डेविड बोल सकता है कौन? मैं? झूठ बोल रहा तू, फेक प्रॉफिट, इसको मारो। बट ही एडमिटेड, लेकिन उसने मान लिया। सेकंड इज prophetic rebuke. Everyone say prophetic rebuke. दूसरा है भविष्यवक्ता के तौर पे डांट फटकार। Many people they don't listen there also. और देखिए बहुत सारे लोग वहां पर भी नहीं सुनते। Hello, are you with me right now? The third one, तीसरा है, listen, the third one तीसरा is discipline and chastening. तीसरा जो है वह अनुशासन और ताड़ना लगाना। The first one पहला है is what? पहला क्या है? Personal conviction. व्यक्तिगत तौर पे Second क्या है? is prophetic rebuke. दूसरा है भविष्यवक्ता डांट फटकार। Third तीसरा is discipline and chastening. अनुशासन और फिर उसके बाद ताड़ना लगाना, सजा Samson. सुनानी। Look at somebody and say Samson. किसी को देखे कहे जोर से शिमशोन। बोल यार, जोर से बोल, जोर से बोल। Samson. First God told him, Samson, पहले परमेश्वर ने ऐसा कहा, सैमसन तू इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर मुंह मारता रहता, तू मत कर। कुछ नहीं होता लॉर्ड, सब लोग कर रहे हैं, मैं करेगा तो कौन सा बड़ा लफड़ाएगा। फिर देन द प्रोफेटिक वर्ड, उसके बाद भविष्यवक्ताई वचन, मदर एंड फादर। माता पिता। कितने लोग सुन रहे हैं? टेल योर नेबर योर मदर इज ऑल्सो प्रॉफिट। अपने पड़ोसी को बोलिए आपकी माँ भी How many नबिया है। mothers agree? कितना सहमत है? The first prophet is mother सबसे पहली नबिया देखिए माँ होती है, and the top prophet is the father. और उच्च नबी जो होते हैं वो पिता होते हैं। जाशील न तर एक थोपड़त लावणार. That's the best prophet. यही तो सबसे बेहतरीन भविष्यवक्ता है। Come on, praise the Lord. बोलिए प्रभु स्तुति हो। And all the fathers said amen. और सभी पिता लोगों ने कहा आमेन। All the fathers are saying amen, amen, amen. Listen, so the mother father spoke to Samson. तो देखते हैं माता पिता ने शिमशोन से कहा, अरे बाबा, इजराइल में लड़की लोग कम है क्या? तू क्या डिलाइला मिलाइला इसके पास घूमते रहता है? इधर देखना, अच्छा लड़की लोग इधर है। नहीं मम्मा, तू समझेगी नहीं, कुछ कुछ होता है। सुनो सुनो सुनो, नहीं इसे पब्लिक यंग लोग बोलते हैं, मम्मा तू समझेगी नहीं, तू 1948 वाली है, तू समझेगी नहीं, अभी जमाना बदल गया मम्मा। अरे बेटा, बिलीवर से शादी कर। नहीं मम्मा, मेरा प्रेम उसे खींच लेगा। We have heard these dialogues. अरे बाबा, वो तो उधर जाता है, सुबह सुबह चिल्लाने वाला आदमी है वो। नहीं समझा? नहीं समझा? It's happened in our ministry, brother. With our own team member. He used to carry my Bible. वो एक बाइबल लेके चल रहे थे। Remember na? From Jerry Mary. He used to carry my Bible. He was a Mangalorean boy. एक मैंगलोरियन लड़के थे। Very good boy. I said, what are you doing? He said, no brother, you'll not understand. I said, sis, I'm in love with her, pastor. Don't worry, pastor. I lay hands for her. I put the oil also. I said, listen, don't do all this nonsense. See, you'll go away from God. ये सब बेवकूफी मत करना, नहीं तो तुम परमेश्वर से दूर चले जाओगे। You'll go away from God. परमेश्वर Nothing से wrong दूर चले with जाओ। people. You'll go away from God. There are so many good girls. Marry as with those who are in Christ. Don't go for this thing. Do you want to believe? He went through witchcraft. Hello? He went through witchcraft. उसके खाने में उनको मिला के दिया। पागल जैसा घूमता था रास्ते पे, आपको मालूम नहीं है। He lost everything. सब कुछ वो गंवा बैठा।
One day he came to meet me. एक दिन इनसे मिलने आए हो. I told him, what is this? He said, I'm chuklo. I उसने said, कहा, tu मुझसे गलती chuko हो गई. nahi, tu futla आता. I've seen these things. ऐसी चीजों को देखे. बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है. Our own people. दूर वाले लोगों का दर्द नहीं होता है. I warn you today. आज आपको चेतावनी देते हैं. Said everyone, personal conviction, और व्यक्तिगत तौर पे कायल होना, prophetic word, भविष्यवाणी वचन, discipline and chastening. और तीसरा अनुशासन और ताड़ना. Samson did not listen. Did not listen. बहुत बोला, नहीं सुना. क्या हो गया? He lost his eyes. अपनी आंख वो गवा बैठा, He lost his anointing. अपना अभिषेक वो गवा बैठा, And one day he lost his life. और एक दिन अपनी जान ही दे बैठा. But I've got good news for you. लेकिन अच्छी खबर है आप लोगों के. Samson is in heaven. शिमशोन जो है स्वर्ग में है. How do you know, Pastor? कैसे आपको पता Because पास? the Bible says in Hebrews 11, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय में it speaks about Samson. शिमशोन के बारे में वहां बताया Come गया on, है. praise the Lord. चले गए प्रभु स्तुति हो. Of course, directly, but this is how it is. Hebrews doesn't speak about Judas. इब्रानी की पत्री में देखिए यहूदा के बारे में नहीं लिखा गया है. I'm telling you, church. So these are the levels. So you test yourself. You examine yourself whether you are in the faith. You examine yourself. तो ये वो स्तर है. देखिए आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को परखें कि क्या Allow आप God's विश्वास में word है to कि नहीं. convict you. और देखिए फिर वो आप कायल करेगा. When God tells you, जब परमेश्वर आपसे कहता है go immediately to God. तो तुरंत परमेश्वर के पास जाए. Finish it. मामला सुलझाएं. Elisha asked him and said, फिर एलिशा ने पूछा where did you lose it? कहां पर तुमने गवाया है. Look at somebody and say, where did you lose it? किसी को देखकर कहां तुमने गवाया Come है. on, say it loudly. Where did you lose it? कहां पर तुमने गवाया. It's not that Elisha did not know. ऐसा नहीं था कि एलिया को पता नहीं था, Because Elisha was a prophet. क्योंकि एलिया एक भविष्यवक्ता था. उसको ऐसा नहीं, हाँ बाबा, tell me where you lost it. No sir, because Elisha was a man of God who could tell the secrets of King Syria. Come on, hello, are you there और right देखिए now? एलीशा परमेश्वर का एक ऐसा जन था जो सीरिया के राजा की गुप्त बातें भी बता दिया करता But था. Elisha wanted that man to know, this is the place you lost it. और लेकिन एलीशा चाहता था कि वो व्यक्ति खुद जान ले कि ये वो जगह जहां पर उसने गवाया है. बाजू वाले को बोल, तू किधर गिरा? अगर तू जानता है तू किधर गिरा तो उस जगह से दूर रहे. God asked Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हवा से where पूछा are you? तुम कहां हो. प्रभु अंधा था क्या? प्रभु को नहीं मालूम था क्या? सर, जो दुनिया की खबर रखता है, प्रभु आदम से पूछता है, आदम तू किधर है बेटा? खुदा नहीं जानता था क्या? खुदा जानता था, लेकिन वो जानना चाहता था, वो आदम को बताना चाहता कि तू किधर है. बाजू वाले को बोल, तू किधर गिरा? जब हम जानते हैं कि हम किधर गिरे, तो उस जगह में हम अनुग्रह मांग सकते हैं. If you're fallen in lust, अगर आप अभिलाषा में गिरे ask God for grace. तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे. If you're fallen in alcohol, अगर आप शराब में गिरे हैं say Lord, I need grace to overcome this. और कहें कि प्रभु जो अनुग्रह चाहिए इस पर जय पाने If के you're लिए. fallen in anger, अगर आप गुस्से में गिरे हैं ask God to overcome that place. परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि उस जगह पर आप जयवंत हो. Touch two people and say, where did you fall? दो लोगों को छुअर कहे कहां पर आप गिरे. अब पैसों के क्षेत्र में गिरे तो उस जगह पर आपको प्रार्थना करने के उस क्षेत्र में अनुग्रह पूछना है. डोंट प्रे लॉर्ड मेक मी अ पायलट. नो, वो ग्रेस अलग है. किधर गिरा तू? किसी को तूने ट्रस्ट किया, फंसा दिया तेरे को, तो उस जगह में ग्रेस मांग. लिफ्ट योर हैंड्स एंड से लॉर्ड गिव मी ग्रेस. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे अनुग्रह दे. How many understanding right now? Where did you fall? Go and check your life. Which other areas have fallen? Where I have fallen in my life? Where I'm not doing well? जाकर अपनी जिंदगी को जांचें कि कहां कौन से क्षेत्र जहां पर मैं गिरा हूं, कहां पर मुझसे चीजें अच्छे से नहीं हो रही है. जांचें परखें. If you go to the doctor अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं today, not earlier, you see, if there is an operation, they will go localized operation. Everyone say localized operation. If there is a heart condition, so they will operate on the heart. अगर दिल की कोई समस्या होती है कि दिल की वो शस्त्रक्रिया करेंगे. They will not start with the leg. बोले फाड़ो इसको सब. देखिए टांग से शुरू नहीं करेंगे, चलो फाड़ो करके नहीं. बोले डॉक्टर क्या कर रहा है? बोले ऑपरेशन. नो सर, अगर दिल का इलाज, दिमाग का इलाज करना है तो पेट नहीं फाड़ेंगे सर. डॉक्टर क्या फाड़ रहे? बोले हाथ डाल रहा हूं इधर से. डॉक्टर आप मैकेनिक हो क्या? तो that is the place of grace. Where did you fall? Are you a gossiper? क्या You आप कानाफूसी speak करने वाले nonsense, व्यक्ति? you speak this thing. Ask God for grace. Say, Lord, touch my lips. Fast and pray. Ask for grace. Somebody lift your hand and say, I will ask for grace. कोई तो अपने हाथ उठाकर मैं अनुग्रह के लिए मांगूंगा. You are a manipulator. आया था क्या? हाँ आया था, but तू manipulator है, घुमाते रहता है. You can never function in the anointing. आप कभी अभिषेक में काम नहीं कर सकेंगे. No sir. नहीं जनाब. Ask God for grace. परमेश्वर से अनुग्रह मांगे.
Look at somebody and say, किसी को where did you fall? किसी को देखकर कहे कहां पर आप गिरे? Yes. So ask God for grace. तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। And lastly, look what it says. और आखिरी में कहता है, Elisha cut a stick and threw it. एलीशा ने made the iron float. देखिए छड़ी काट कर डाल दी। There are two people who did this in the Bible. और देखिए दो लोग हैं जिन्होंने बाइबल में किया। First one was Moses. पहला था मूसा, He took the tree उसने पौधा लिया and he threw it in the water. और पानी में डाल दिया। It speaks about the cross hitting the water and the water became sweet. और ये बताता है क्रूस जो है पानी पे मार रहा है और वो पानी जो है मीठा हो रहा है। The tree always represents the cross of Jesus. और पेड़ जो है हमेशा यीशु के क्रूस का प्रतीक है। The second दूसरा was Elisha. वो एलीशा, He took a twig and he threw it. उसे छड़ी को लेकर देखिए डाल दिया। Everything happens through the cross of Jesus. सब कुछ होता है यीशु के क्रूस पर। How many of you following me right now? It is not through सांस लो सांस छोड़ो. No sir. Psychology, no sir. Think you are becoming great. Yes, I'm thinking, but still I'm not great. There's no psychology that works and makes you great. और ऐसा कोई बहनों वैज्ञानिक स्थिति नहीं है जो काम करके आपको महान बनाती है। See this picture every day and you will become great. और इस चित्र को हमेशा रोज देखते रहो और तुम महान बन जाओगे। The picture has changed, but I have not changed. वो चित्र पिक्चर बदल गया है लेकिन मैं नहीं बदल पाया हूँ। My friend, मेरे दोस्त how many understand what I'm saying? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? All these things are there. ये सारी चीजें हैं Keep this. The vibrations will make you great. और इस चीज को रखो, इसका वाइब्रेशन जो है तुम्हें महान बनाएगा। एक बार पहले हम लोगों ने ना ऐसा घर में वो ऐसा लगाया था, ऐसा हवा आता था टिंग 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 टिंग। कितने लोगों ने लगाया? हाथ उठाए हैं। बोले इससे सब भूत लोग भागते हैं। सर भूत तो बने भागे लेकिन हमको भागना पड़ा। सब अच्छा है, डेकोरेशन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये चीजों पर तुम विश्वास करके सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी तो तुमको प्रार्थना की जरूरत है। बोले ये रखो, इसकी गर्मी से तुम्हारा मन बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा सर, क्योंकि ये सब चीज आजमा चुका हूं मैं। एक औरत आई थी मीटिंग में, थर्सडे के दिन आई थी। प्रभु ने मुझे बताया, उसका लेफ्ट हैंड बताया। मैं बोला आप ज्योतिष के पास गई थी, आपने राइट हैंड ने लेफ्ट हैंड बताया। बोला बरसों से मैं लेफ्ट हैंड ही बता रही हूं और आपने बोला लेफ्ट हैंड। कितने लोगों ने देखा वो? अरे वो कौन सा खुदा है जो बोल सकता है कि कौन सा हाथ तू दिखाती है? अभी भी अकल खोलो। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मीटिंग के बाद बोल रही थी वो बेचारी। तो ये सब चीजें ठीक है। कोई बोलता है हाथों की लकीरें देखो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सर बहुत जगह पे लकीर है। There are many lines in our body. शरीर में ऐसे बहुत सारी लकीरें हैं। Now let me not go anywhere now. चले कहीं और नहीं जाएंगे। It doesn't change your life. या इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलती। Come on, praise the Lord. I said praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। What changes your life is the cross of Jesus. क्या चीज आपकी जिंदगी बदलती है? वो है यीशु का क्रूस। Today, आज look at Jesus and say, Lord, आज यीशु को देखकर I कहे believe प्रभु you did it for me on the cross. मैं विश्वास करता हूं तूने क्रूस पर मेरे लिए सब किया। कोई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं उस घुटने पे जाके हर एक मीटिंग के पहले मैं क्या बड़बड़ता हूं उधर। तो मैं आज मैं बताना चाहता हूं आपको मैं क्या बड़बड़ता हूं। मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु मैं अपनी ताकत मैं नहीं कर सकता, तू तेरी ताकत दिखा आज। I want to tell everyone, हर एक से कहना चाहेंगे, smart, beautiful, handsome people, listen to me. Today you are my team members. I want to tell you this. So you have to take this message and you have to apply it in your आपको life, इस संदेश को including my family. अपनी जिंदगी में से लागू करने की जरूरत है। Go to the cross of Jesus. यीशु के क्रूस के पास जाएं And every time when you pray, और हर बार जब आप प्रार्थना look करते at हैं Jesus on the cross. यीशु क्रूस पर देखें। No need for anything in your house. Just imagine Jesus on the cross. बस यीशु को क्रूस पर कल्पना करें And say, Lord, I believe. और कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, Not my strength, Lord. मेरी ताकत से नहीं I प्रभु, cannot overcome this addiction. मैं इस व्यसन पर जय नहीं पा I सकता cannot overcome this attraction. और इस आकर्षण पर मैं जय नहीं पा I सकता, cannot overcome this lust. इस अभिलाषा पर मैं जय नहीं पा सकता, But through the cross, लेकिन क्रूस के जरिए I can overcome it, मैं Lord. जय पा सकता हूं प्रभु। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्ला हालेलुया। And mark my words. और देख लीजिएगा, मैं तुमको झूठी चीजें नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल Paul कहता है कि that Jesus cursed is one who hangs on a tree. Everyone say cursed is one who hangs on a tree. Are you और उसने कहा listening? शापित है वो जो जिसे क्रूस पर पेड़ पर शापित है वो? टांगा गया। एक बाइबल एक ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है कि जो उस पेड़ पे मारा गया। किस पे मारा गया? पेड़ पे मारा गया। श्रापित है वो जो पेड़ पे मारा गया। सो हमारे श्राप हमारे लिए वो श्राप बना।
जब हम लोग बोलते हैं प्रभु ये जो गंदगी का श्राप है तू उस मेरा श्राप उठा लिया, आई टेल यू यू विल वॉक इन होलीनेस, और बताना चाहते हैं आप पवित्रता में चलेंगे, यू विल वॉक इन विक्ट्री। आप विजय में चलेंगे। टुडे दिस आज इज द सीक्रेट चर्च। यह है रहस्य टुडे कलीसिया। आई वांट टू टेल ऑल द टीम मेंबर्स, आज सभी टीम के लोगों से कहना चाहेंगे, लेट योर लाइफ बी राइट। होने तो आपकी जिंदगी सही हो जाए। कितने लोग सुन रहे हैं? हम दुनिया को ठीक करने के पीछे पड़े हुए हैं। आई नो ऑल द टीम मेंबर्स आर नॉट देयर, बट ये बहुत बोलना जरूरी है। एंड लीडर्स, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ टीम ऐसे टीम की तलाश में है दैट इज सीरियस। जो गंभीर हो। आई एम लुकिंग फॉर अ लीडर्स ऐसे अगुवों की तलाश में है, लाइक अ गिडियंस आर्मी, गिदोन की फौज के समान, नॉट द सीरियन आर्मी। सीरिया की फौज के समान नहीं। आई एम लुकिंग फॉर लीडर्स हु से यस पास्टर, जो ऐसे अगुवों की तलाश में है जो कहते हैं हाँ पासवान जी आई विल बी देयर। मैं रहूंगा वहां। Those who want to be in the Gideon's army, it may be small, जो गिदोन की सेना में होना चाहते हैं, भले ये छोटी रहे but it will be effective. लेकिन प्रभावशाली होगी। This week onwards, इस हफ्ते से I will be doing some hard decisions. कुछ कठिन फैसले लेने जा रहे हैं, I'll be making some very hard कुछ decisions. बहुत ही कठिन फैसले लेने जा You रहे may हैं। not like me, भले आप पसंद नहीं करेंगे but I don't care. लेकिन फर्क नहीं पड़ता। I know the Lord loves me. जानते हैं कि प्रभु And प्यार I want to करता है tell you truly, और सच्चाई से कहना I चाहते हैं। pray for you every day. हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, Every day I lay hands and I pray for my leaders. हर दिन अपने अगुओं पर हाथ रख के प्रार्थना करते I हैं, pray for the members. सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। You can ask my wife if you don't believe anybody. अगर आप किसी बात में विश्वास नहीं करते तो पास्टर अनीता जी से पूछ सकते Pastor हैं। David, you come from Calcutta for the service. You see what I prayed. Everyone who's connected with us, the anointing must come. He came from Calcutta. You know why he came from Calcutta? He's come for the anointing. कलकत्ता से आए ये अभिषेक आदमी के लिए। पैसे पूछने नहीं आया यहाँ पे. He's a pastor. You all came from Calcutta, right? Stand up. Yes. खड़े हो जाइए। हम लोग पैसे मांगने आए मेरे से. They came for the anointing. अभिषेक पाने के लिए आए, They want to be connected with us. जुड़ना चाहते हैं So हमसे। many pastors. कई सारे पासवान। Sit down. God bless. So today I have taught you. तो आज आपको सिखाया, I'm going to tell all the leaders. मैं इसलिए सभी मैं अगुओं आपको से कहना बुलाया आज. सारे लीडर्सों से मैं कहना चाहता हूँ, सारे जेट पे लीडर्स, काट छाट होगी, आपको बुरा लगेगा, लगने दो. But I want to tell you, better a Gideon army than a Syrian army. Pastor Woman, am I right? सीरिया की फौज से अच्छा है कि गिदोन की फौज हो हमारे So I पास। want leaders that are available, तो चाहते हैं वे अगुवे लोग जो उपलब्ध हों, not show people. सिर्फ दिखावा करने वाले लोग नहीं। तुम गरीब हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन तुम लीडर अवेलेबल होना चाहिए. और प्रभु 300 से भी विक्ट्री दे सकता है. Amen. You will see the anointing flowing. आप देखेंगे अभिषेक को बहते हुए। You will see the glories. You know, one prophet called up and told me, he says, Pastor Michael, something has happened in your ministry. एक भविष्यवक्ता जी ने कॉल करके बताया, पासवान जी कुछ तो आपकी सेवकाई में हुआ है। One prophet called me up. I'll not take his name. उनका नाम नहीं लेंगे। Hey, Pastor Mike. I said, hey, how are you doing, prophet? So he said, something has happened from the 1st of September. I said, who told you? He said, I had a dream, prophet. He said, he calls me prophet. But I told him, just call me pastor. So he said, prophet, I had a dream. So I said, who told you, man of God? So he said, who has to tell me? Our boss told me, he says from September onwards, he says, there will be a shift in your ministry. सितंबर महीने से तुम्हारी सेवकाई में एक बदलावट होगा। Many of that told. A shift in your ministry. सेवकाई में बदलावट। Praise the Lord.